Hi my beauties, welcome back to my channel. I hope you guys are doing well. अब मॉनसून सीजन है और मॉनसून स्किन केयर एसेंशियल्स की बात ना करें ऐसा नहीं हो सकता. In today's video, I'm going to be sharing with you my monsoon skincare essentials. मैंने बहुत ही budget friendly products pick किए हैं इस वीडियो के लिए because I want you guys to try these products out because they are incredible and on budget as well. Now I'm going to be sharing with you the ingredients that I feel are very important to include in the monsoon season specifically and especially for my combination skin. Skincare बहुत ही tricky हो जाता है. What skincare will work on different skin types is what I have here. तो आप किसी भी skin type category में हैं, आपको कुछ ना कुछ अपने लिए इस वीडियो में ज़रूर मिल जाएगा and I'm going to be talking about different ingredients as well. और of course वीडियो budget friendly रखा है so that more and more of you can pick up these products. Now without further ado, let's quickly dive right into this video. If you're new here, please take a moment to subscribe to the channel. Do also make sure you hit the notification bell. Do also follow me on my Instagram. And now let's dive right into it. So first things first, I'm going to talk about my favorite moisturizer. अब इसे आप एक holy grail moisturizer कह सकते हैं because I've been using it for a while. और इसका टेक्सचर बहुत ही स्किन फ्रेंडली है स्पेशली इन द मॉनसून सीजन. हर डिफरेंट स्किन टाइप और स्किन कंडीशन पे अच्छा रहेगा एंड इफ यू आर सेंसिटिव स्किन कंडीशन यू कैन ट्राई दिस. आई एम रेफरिंग टू द डॉक्टर शेथ सेरामाइड एंड विटामिन सी ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर. नाउ व्हाट आर द हीरो इंग्रेडिएंट्स? लेट्स टॉक अबाउट दोज फर्स्ट. सबसे पहले तो इसमें सेरामाइड कॉम्प्लेक्स है ऑफ कोर्स व्हिच इज गोइंग टू हाइड्रेट योर स्किन. इट्स गोइंग टू इंप्रूव स्किन बैरियर एंड इसमें विटामिन सी भी है. विटामिन सी इज अ ग्रेट antioxidant and it is in the form of ethyl ascorbic acid. Ethyl ascorbic acid एक काफी stable form of vitamin C है जो इस moisturizer में है and ceramides and vitamin C together make a potent combination to boost collagen as well. Overall इसका texture बहुत lightweight है, easily absorb हो जाता है skin में and like I said कि हर different skin type और skin condition के लिए ये काफी अच्छा है. A lot of people who get sensitivity in the monsoon season like me. Currently my skin is very sensitive around this area. कुछ भी लगाने से inflammation या redness हो जाती है. This is the kind of moisturizer on budget that has really helped me. अब इसको लगाने से किसी तरीके का inflammation, जलन या redness मुझे नहीं होता, which is why I like. इसमें एक और बहुत अच्छा ingredient है अश्वगंधा जो anti-inflammatory है, हाइड्रेट भी करता है स्किन को एंड इट हैज कोलेजन बूस्टिंग प्रॉपर्टीज. अब विटामिन सी के बारे में तो मैंने बहुत बात करी है सो आई डोंट नीड टू रिपीट माई सेल्फ. इट इज नॉट जस्ट अ ग्रेट एंटीऑक्सीडेंट, इट प्रिवेंट्स योर स्किन, प्रोटेक्ट्स योर स्किन फ्रॉम फ्री रेडिकल डैमेज. जो यूवी लाइट डैमेज होता है उससे विटामिन सी आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है. सो इफ यू वेयर इट इन द डे टाइम इट इज अ ग्रेट प्रोडक्ट टू लेयर अंडरनीथ योर सनस्क्रीन और रात को भी ऑफ कोर्स आप इसको यूज कर सकते हैं. सेरामाइड कॉम्प्लेक्स जो है दे आर naturally occurring lipids in your skin and ceramide complex is a great ingredient even at the night time because it's going to rejuvenate your skin, it's going to repair your skin barrier. Overall I feel monsoon season के लिए oily acne prone skin है, dry skin है because इसका texture भी बहुत अच्छा और hydrating है and this one does have some great emollients and humectants. Now emollients जो हैं वो एक moisturizer में डालने बहुत ज़रूरी हैं because वो skin को hydrate भी करना चाहिए. Lightweight है, oil free है but dry skin के लिए भी बहुत अच्छा है. So no matter what your skin type is, this is a product I highly recommend for the monsoon season. अब आते हैं दूसरे प्रोडक्ट रिकमेंडेशन पे. मॉनसून में स्पेसिफिकली पोर्स क्लॉग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन यू डोंट वांट टू यूज़ एनीथिंग जो हाईली स्ट्रिपिंग हो स्किन पे, मीनिंग आपका बैरियर ब्रेक ना हो जाए. इसलिए हमें एक्सफोलिएशन भी बहुत सोच समझ के करना चाहिए इन द मॉनसून सीजन. वन सच फेस वॉश जिससे मैं एक एक्सफोलिएटिंग प्रोडक्ट से स्टार्ट करूंगी है फिक्स डर्मा का सैलिज़ैप डेली फेस क्लेंजर. अब आप इसको डेली तो मत लगाइए बिकॉज इसमें सैलिसिलिक एसिड है बट ये बहुत अच्छे से फॉर्मुलेट किया गया है, एलोवेरा के साथ है. ये स्ट्रिपिंग फील नहीं होता स्किन पे और इसमें इंग्रेडिएंट्स इस तरह के डाले गए हैं दैट इवन आफ्टर यू वॉश योर फेस आपको डीप क्लेंस तो मिलेगा ही. एंड ऑफ कोर्स भूलिएगा ना कि आपको अपना जो फेस है वो कम से कम 30 to 45 सेकेंड्स, आई वुड से 45 सेकेंड्स तक तो ज़रूर अपने क्लेंजर को अच्छी तरह मसाज करें. अब सैलिसिलिक एसिड बेस्ड जो भी क्लेंजर्स हैं आई प्रेफर टू यूज़ एट द नाइट टाइम. तो मैं 3 से 4 बार हफ्ते में इसको यूज़ कर लेती हूँ.
ना ये एक फार्मेसी प्रोडक्ट है, इजीली अवेलेबल है, बजट फ्रेंडली भी है, आप किसी भी नियर बाय केमिस्ट से इसको पिक कर सकते हैं। मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा पोर क्लेंजिंग फॉर्मूला है। इसमें ग्रीन टी भी है विच इज एंटी इन्फ्लेमेटरी अगेन। अब चलते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किन केयर स्टेप पे। मैं आपको दूंगी एक बहुत पोटेंट कॉम्बिनेशन जिसके बारे में मैंने पहले भी बहुत बार बात करी है अपनी यूट्यूब वीडियोस में। अगर आपने मेरा लेयरिंग द स्किन केयर करेक्टली, इंग्रेडिएंट्स, पेयरिंग द इंग्रेडिएंट्स करेक्टली वाला वीडियो देखा हो, नहीं देखा तो आई एम गोना लिंक इट राइट हियर फॉर यू, उसे ज़रूर जाके देखिए। उसमें कुछ बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है, उसी में से एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको आज दूंगी। ऐसे 2 इंग्रेडिएंट्स हैं जिन्हें अगर आप पेयर करते हैं दे आर अ मैच मेड इन हेवन, स्पेशली फॉर द मॉनसून सीजन। वो क्या है? वो है नाइसिनामाइड और सैलिसिलिक एसिड। नाइसिनामाइड जो है वो एक्ने को प्रिवेंट करता है, इट हेल्प्स ब्राइटन स्किन। एक बहुत ही बेहतरीन इंग्रेडिएंट है टू इंक्लूड इन योर स्किन केयर रूटीन। एंड इफ़ यू आर अ बिगिनर तो आप 5% नाइसिनामाइड से स्टार्ट करें। अगर आपने ऑलरेडी नाइसिनामाइड पहले यूज़ किया है और मैंने बहुत सारे रिकमेंडेशंस भी दिए हैं तो आप 10% भी यूज़ कर सकते हैं। मैं कुछ ऑप्शंस आपके लिए डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगी। अब 5% में मेरे पास प्लम का नाइसिनामाइड है, ये राइस वाटर के साथ आता है, बहुत ही बेहतरीन फॉर्मुलेशन है, लाइट वेट है, हर स्किन टाइप, स्किन कंडीशन पे ज़रूर चलेगा, बिगिनर फ्रेंडली है, आपको इरिटेशन फील नहीं होगा, डेफिनेटली पैच टेस्ट इफ़ यू आर यूजिंग एनीथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। अब नाइसिनामाइड लाइक आई सेड prevents acne, it also improves textured skin। अब हमें पोर्स भी अपने अनक्लॉग करने हैं तो नाइसिनामाइड के साथ हम क्या लगाएंगे? सैलिसिलिक एसिड। अब आप अगर इन दोनों प्रोडक्ट्स को पेयर कर रहे हैं तो पहले आप नाइसिनामाइड लगाएंगे बिकॉज इट्स बैरियर प्रोटेक्टिंग एंड इट इज गोइंग टू मेक अ वेरी गुड हाइड्रेटिंग लेयर ऑन योर स्किन। ये वाला जो प्रोडक्ट है इसमें राइस वाटर भी है विच इज अ ग्रेट इंग्रेडिएंट टू इंक्लूड इन अ नाइसिनामाइड सीरम, बहुत अच्छा फॉर्मुलेशन है। उसके बाद मेरे पास मिनिमलिस्ट का सैलिसिलिक एसिड है, वन ऑफ द फेवरेट सैलिसिलिक एसिड ऑफ माइन, जो बहुत मुझे जेंटल लगता है, अपनी स्किन पे 2% है बट इट इज़ वेरी वेरी वेल फॉर्मुलेटेड। इसे मैं स्पॉट ट्रीटमेंट की तरह भी यूज़ करती हूँ, मीनिंग आई विल पुट इन प्लेसेस जहाँ पे मुझे ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स ज़्यादा हैं। Now to decongest your pores, it is very important to exfoliate gently your skin, especially in the monsoon season, because pores, like I said, moisture की वजह से pores clog होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। पहले आप नाइसिनामाइड लगाइए, उसके बाद सैलिसिलिक एसिड लगाइए, स्पॉट ट्रीटमेंट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ नोज पे, फोरहेड पे, चिन पे या जहाँ भी आपको क्लॉग्ड पोर्स फील होते हैं। अब इसको लगाने का क्या तरीका है? एक तो सबसे पहली बात आई हैव लर्न थ्रू एक्सपीरियंस कि अपने सिरम्स को मिक्स मत करें बिकॉज वो अच्छे से लेयर नहीं हो पाते, इवनली लेयर नहीं हो पाते। तो लॉट ऑफ पीपल आई सी दे मिक्स देयर सिरम्स एंड देन दे अप्लाई। आई वुड से यू डोंट गेट अ प्रॉपर एंड एन इवन एप्लीकेशन। तो आप 2 सिरम्स अगर यूज़ कर रहे हो तो आप पहले अपना एक सिरम लेयर करो, वेट फॉर अबाउट 30 to 45 सेकेंड्स, उसके बाद आप दूसरा सिरम लेयर करें। वैसे भी आपको एक ब्रेक देना चाहिए अपने स्किन केयर लेयरिंग में। इसको आप यूज स्पॉट ट्रीटमेंट की तरह कर सकते हो। आई लाइक टू यूज इट ऑन माई नोज मेनी टाइम्स ऑल ओवर माई फेस, decongest योर pores एंड टेक्स केयर ऑफ ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स। अब ये जो कॉम्बिनेशन है ये तो आप यूज़ कर सकते हो मॉर्निंग में अपने AM रूटीन में एंड नाइट टाइम रूटीन में भी, बिकॉज ये जेंटल है, हाइड्रेट भी करेगा। इसे आप यूज़ करेंगे 3 बार हफ्ते में और वो भी रात को। अब ऐसा माना जाता है कि सैलिसिलिक एसिड AM और PM दोनों में यूज़ कर सकते हैं, टेक्निकली यस, बट इन माई ओपिनियन एंड माई सजेशन प्रिफर टू यूज़ इट एट द नाइट टाइम। 3 से 4 बार हफ्ते में आप इसको यूज़ कर सकते हो। अब आते हैं एक बहुत ही अंडररेटेड इंग्रेडिएंट जिसके बारे में ज़्यादा बात नहीं होती बट इट एक्चुअली इज़ अ वेरी गुड इंग्रेडिएंट टू इंक्लूड इन योर स्किन केयर रूटीन। आप इसको हफ्ते में 1 बार यूज़ कर सकते हो। मेरे पास है एक फेस मास्क, ये डॉक्टर शेट्स का पैशन फ्रूट एंड सल्फर फेस मास्क। अब इसका बेस जो है वो केओलिन क्ले और बेंटोनाइट क्ले का है, नाइसिनामाइड भी है एंड सल्फर। सल्फर हैज द एबिलिटी टू सक आउट एक्सेस सीबम एंड इम्प्योरिटीज फ्रॉम योर पोर्स। ये बहुत ही बेहतरीन इंग्रेडिएंट है अगर आप एक्ने प्रोन स्किन हो या अगर आपको मॉनसून में ब्रेकआउट होता है, आपके पोर्स क्लॉग्ड हैं। दिस इज अ वेरी गुड एक्सफोलिएटिंग, जेंटली एक्सफोलिएटिंग फेस मास्क दैट आई लाइक टू यूज ऑन माई स्किन वंस अ वीक। नॉर्मली मैं इसे 10 से 15 दिन में 1 बार यूज करूंगी इफ आई एम यूजिंग माई BHA, बट मॉनसून सीजन में आई लाइक टू यूज इट वंस अ वीक। अब इसको यूज करने का तरीका भी बहुत इंटरेस्टिंग है। द वे आई यूज इट इज यू कैन ऑफ कोर्स अप्लाई इट ऑल ओवर योर फेस। आई लाइक टू स्पॉट ट्रीट विद दिस।
मैं इसको नोज पे, जहाँ पे मेरे सबसे ज़्यादा क्लॉग होते हैं पोर्स, चिन पर एंड फोरहेड पर यूज़ करती हूँ। यू कैन ऑफ कोर्स अप्लाई ऑल ओवर योर फेस। इसके रिजल्ट्स आर अमेजिंग। इट अनक्लॉग्स द पोर्स रियली नाइसली। आप देख सकते हो मैंने कितना सारा ये यूज़ कर लिया है, मेरे पास एक बैकअप ऑलरेडी है। बहुत ही वेल फॉर्मुलेटेड प्रोडक्ट है, रियली लाइक दिस, डजंट ड्राई आउट योर स्किन और बड़े अच्छे से फॉर्मुलेट किया गया है। अब सल्फर जो है उसकी बहुत अच्छी पोटेंट प्रॉपर्टी है दैट इट इज अ केराटोलिटिक एजेंट, मीनिंग इट एक्सफोलिएट्स द डेड स्किन फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द स्किन। उसके बाद इसमें पैशन फ्रूट भी डाला है विच इज एन एंटीऑक्सीडेंट एंड डिड यू नो पैशन फ्रूट इज रिच इन विटामिन सी एंड ए। मेरे हिसाब से बहुत अच्छा फेस मास्क है एंड डेफिनेटली टॉप्स द चार्ट फॉर मी व्हेन इट कम्स टू मॉनसून स्किन केयर एसेंशियल्स। अब इसको लगाने का तरीका तो मैंने आपको बता ही दिया है। यू पुट इट ऑन योर फेस, एंटायर फेस, और यू कैन स्पॉट ट्रीट विद इट। लीव इट ऑन देयर फॉर अबाउट 5 to 10 minutes एंड देन जस्ट जेंटली टेक सम वाटर इन योर हैंड्स and then massage this. इसको थोड़ा सा मसाज करेंगे, you don't have to rub it a lot, just massage very gently and then just wash off. आपके enlarged pores हैं, texture है स्किन में, तो ये आप जरूर इंक्लूड करें अपने स्किन केयर रूटीन में once a week। एंड अगर आपकी textured स्किन है, enlarged pores हैं और अगर आपको black head, white head का प्रॉब्लम है तो niacinamide और salicylic acid का combination is amazing. The last product that I have for you is a good sunscreen. Now in the monsoon season you need something which can work on all different skin types. जो sunscreen मेरे पास है ये gel based है और it will work on all different skin types. White cast नहीं है इसमें and I love the way it sits on the skin. ये gel formula है, that's what they call it, but it has a demi matte finish. This is the product from Deconstruct. This is their gel sunscreen. इसमें SPF आपको 55+ का मिल जाता है and PA++ का रेटिंग है। I feel it's a very well formulated sunscreen. Texture बहुत lightweight है, कोई white cast नहीं है, बजट फ्रेंडली भी है, काफ़ी बजट फ्रेंडली है इनफैक्ट, एंड इट विल वर्क ऑन ऑल डिफरेंट स्किन टाइप्स एंड स्किन कंडीशंस। विद दैट इट्स अ रैप गाइस। आई रियली होप यू एंजॉयड वाचिंग दिस वीडियो। मॉनसून स्किन केयर एक ऐसा टॉपिक है जो आप में से बहुत लोग पूछते हैं कि कौन से स्किन केयर इंग्रेडिएंट्स अप्लाई करने चाहिए अपने स्किन पे। सो आई थॉट व्हाई नॉट पुट अ वीडियो टुगेदर। आई ट्राई टू कीप इट कॉम्प्रिहेंसिव। मुझे बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स आपको नहीं बताने थे। आई एम प्रीटी श्योर इसमें से काफ़ी प्रोडक्ट्स, इंग्रेडिएंट्स आपके फॉर्मुलेशंस में ऑलरेडी आपके पास होंगे। ऑल यू हैव टू डू इज यूज देम करेक्टली इन ऑर्डर टू कीप योर स्किन सॉफ्ट, supple, healthy and essentially unclog your pores and keep acne at bay. एक छोटा सा टिप और देती हूँ, डबल क्लेंजिंग आप में से बहुत लोग पूछते हैं ज़रूरी है या नहीं। मेरे हिसाब से डबल क्लेंजिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इन योर नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन। आप मेकअप वेयर हैं या नहीं है, एक ऑयल बेस्ड क्लेंजर फॉलोड बाय अ वाटर बेस्ड क्लेंजर जरूर यूज करें। आपको पता है सनस्क्रीन आपकी स्किन पे एक शील्ड बना देती है, उस शील्ड को ब्रेक डाउन करने के लिए भी आपको एक ऑयल बेस्ड क्लेंजर की जरूरत है। सो डोंट फॉरगेट टू डबल क्लेंस एट नाइट। That itself is one of the most important steps because आपकी स्किन क्लियर रहेगी और आपके पोर्स क्लियर रहेंगे तो आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम तो आपकी वैसे ही सॉल्व हो गई। With that it's a wrap guys. I really hope that you enjoyed watching this video. मेरे लिए कोई वीडियो recommendations हो, कोई टॉपिक्स हो जिन पे वीडियो देखना चाहते हैं, definitely leave a comment in the comment section. Until I see you next guys, thank you so much for watching. Love you all. Bye bye.